Good morning students, welcome back to online videos. Students, in the previous classes we have started our civics chapter 2 understanding secularism. Today we will start our part 3 from this chapter. Students, in the previous class we have taught about what is Indian secularism, how the Indian state functions as secular. Today we will be discussing about the comparison with other secular countries. Student, as you know, the meaning of word secular is different from different countries. Today we will discuss about the comparison of this word from different countries. So students, let's open your book, page number 238. Let's start our today's topic, comparison with other secular countries. The objective of Indian secularism are similar to those of other secular democratic countries. However, there is a slight difference between Indian and Western conception of secularism. Indian और Western secularism वर्ड जो है उसके मीनिंग में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है. The mainstream Western conception of secularism means mutual exclusion of state and religion for the purpose of protecting values such as individual freedom and citizenship rights of individuals. Mutual exclusion means कि दोनों जो religions और state दोनों बिल्कुल ही individual है. Religions बिल्कुल एक individual part है and state एक बिल्कुल individual part है. दोनों एक दूसरे में बिल्कुल interference दोनों का बिल्कुल नहीं है. Mutual exclusion means that religion and state must be strictly separated. बिल्कुल ही अलग है एक दूसरे से. बोलो, both religion and state must stay away from other internal affairs of one another. एक दूसरे से वो बिल्कुल भी इंटरनल अफेयर्स से बिल्कुल दूर रहते हैं. बोलो, रिलीजन्स को कैसे क्या फॉलो करना है, कैसे क्या उसको आगे बढ़ाना है, उसमें गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं करती है. गवर्नमेंट कैसे आगे कंडक्ट कर रही है अपना पॉलिसीज वगैरह, उसमें रिलीजन बिल्कुल इंटरफेरेंस नहीं करता है. द स्टेट मस्ट नॉट इंटरवीन इन द डोमेन ऑफ रिलीजन एंड लाइकवाइज रिलीजन शुड नॉट डिक्टेट स्टेट पॉलिसी और इन्फ्लुएंस द कंडक्ट ऑफ द स्टेट. For example, the US Constitution prevents the legislature from making laws respecting an establishment of religion or that prohibit the free exercise of religion. एक्सरसाइज रिलीजन के कार्य को बिल्कुल ही फ्री रखा गया है उस कॉन्स्टिट्यूशन में. इट मीन्स दैट द लेजिस्लेचर कैन नॉट डिक्लेयर एनी रिलीजन एज द ऑफिशियल रिलीजन. लेजिस्लेचर में कोई भी एक रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन नहीं माना गया है. यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे कैन नॉट गिव प्रेफरेंस टू एनी वन रिलीजन. किसी एक भी धर्म को वो प्रेफरेंस नहीं देते हैं, किसी को महत्व नहीं देते हैं. देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन ऑफ स्टेट एंड रिलीजन. Neither of them can interfere in the affairs of one another. और एक दूसरे में बिल्कुल इंटरफेयर भी कभी वो लोग धर्म और सरकार के बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है. However, Indian secularism differs from the Western conception of secularism. पश्चिम का जो कॉन्सेप्शन है जो सेकुलरिज्म का, उससे थोड़ा सा डिफर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. As against complete separation between religion and state in Europe and the US, in India secularism, the state can intervene in religious affairs. जहाँ की जबकि यूएस और यूरोप में, इंग्लैंड में आपने देखा कि बिल्कुल भी इंटरफेरेंस गवर्नमेंट और धर्म के बीच में नहीं होता है. बट इंडिया में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ धार्मिक मामलों में इंटरफेरेंस पॉसिबल है. As we have seen, our constitution intervened in the religious practice of Hinduism to abolish untouchability. है ना, इंटरफेरेंस धार्मिक मामले जो हैं कुछ उसमें इंटरफेरेंस करती है इंडियन गवर्नमेंट. जैसे कि अभी 3 तलाक का भी जो एक धर्म से जुड़ा हुआ मामला था, वो इस्लाम धर्म से जुड़ा हुआ मामला था. अनटचेबिलिटी ये हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मामला था. तो कुछ धर्म के जो ऐसे चीज़ें हैं जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी है, उसमें गवर्नमेंट इंटरफियर कर सकती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलरिज्म ये कहता है. As the time of forming of the constitution, conditions in India were different, and to respond to the challenges they posed, the makers of the constitution had to work out an
alternative conception of secularism that departed from the Western model in two ways and for two different reasons. अलग अलग रास्ते पे, दो रास्तों से और अलग अलग कारणों से उसको फॉलो करती है. फर्स्ट, राइट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी. जो धार्मिक कम्युनिटीज हैं उसको हक दिलाना ये गवर्नमेंट का काम है. एज सेवरल रिलीजियस कम्युनिटीज एक्सिस्टेड इन इंडिया, बहुत सारे धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं. द इंटर कम्युनिटी इक्वलिटी वॉज एज नेसेसरी एज इक्वलिटी बिटवीन इंडिविजुअल्स. दिस वॉज बिकॉज अ पर्सनस फ्रीडम एंड सेल्फ रिस्पेक्ट वॉज डिपेंड ऑन द स्टेटस ऑफ हिज कम्युनिटी. क्योंकि इंडिया में ऐसा है कि उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम इस पर डिपेंड करता है उसकी कम्युनिटी और उसका स्टेटस ऑफ हिज और हर कम्युनिटी, उस किस धर्म से किस समुदाय से बिलोंग करती है उस पर डिपेंड करता है उसका फ्रीडम और सेल्फ रिस्पेक्ट करता था. तो इसलिए कहीं इंटरफेयर करना जरूरी है. देयरफॉर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स इक्वल राइट्स टू ऑल रिलीजियस कम्युनिटीज. इसीलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये धर्म को उसमें स्थान दिया गया है कि सारे धर्म को एक समान अधिकार है. सच इज समानता का एक समान अधिकार है. सच इज द राइट टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. वैसे ही सब अपने अपने धर्म का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं. उनको इक्वल राइट्स है. उन लोगों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया मीन्स द फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ बोथ इंडिविजुअल्स एज वेल एज कम्युनिटीज. फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स कि व्यक्तिगत रूप से और कम्युनिटी के थ्रू भी इंडिया के जो पीपल है बिल्कुल फ्री है रिलीजन को फॉलो करने में, उसको अप्रोच करने में. नाउ सेकंड इज रीजन इज स्टेट्स पावर ऑफ इंटरवेंशन. स्टेट पावर गवर्नमेंट को इंटरवेंशन क्यों करना पड़ता है, उसका सेकंड रीजन ये भी है कि इन इंडिया रिलीजियसली सैंक्शन्ड कस्टम्स सच एज अनटचेबिलिटी डिप्राइव इंडिविजुअल्स ऑफ द मोस्ट बेसिक डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट. सच कस्टम्स लाइक अनटचेबिलिटी, वो डिसरिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा उसको आगे बढ़ा रहा था. तो इस तरह की कुछ जो कस्टम्स हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, कुछ भी किसी भी धर्म से जुड़े हुए हैं, जो ऐसे कस्टम्स हैं जो समाज में इनइक्वलिटी फैलाता है, उसमें इंटरफियरेंस करना गवर्नमेंट का जरूरी है. इसीलिए भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस इंटरवेंट रिलीजन में इंडियन गवर्नमेंट को करना पड़ता है. We are so deeply rooted that without active state intervention there was no hope of their dissolution. उसका कोई सॉल्यूशन फिर नहीं हो पाता, इसलिए उसमें इंटरफेरेंस करना जरूरी था. The state simply had to interfere in the affairs of religion. Thus the state may help or hinder religious communities depending on which mode of action promotes values such as freedom or equality. Thus, in Indian secularism, the separation between religion and state maintains of a principled distance with religion. तो सारे धर्मों के बीच में एक डिसिप्लिन डिस्टेंस मेंटेन करके, प्रिंसिपल डिस्टेंस मेंटेन करके गवर्नमेंट अपना वर्क करता है. That means the state can intervene or abstain from interference depending upon which of these two would better promote the ideals laid out in the Constitution. The ideals of liberty, equality and social justice. On the basis of these ideals, we can judge whether the state is functioning according to the secular principles. Though the term secular was not initially mentioned, the Indian Constitution has always been secular. कोई सेकुलर वर्ड उसमें मेंशन नहीं है, बट वो हमेशा से सेकुलर रहा है. उन्होंने सबको एक समान अधिकार दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. The fundamental rights guaranteed by the Constitution are based on secular principles. Secular principles सिद्धांतों पे उसका fundamental rights dependent है Constitution का. In spite of this, there are violation of fundamental rights and secular ideals in our society. उसके बावजूद भी अगर हमारे rights को हनन होता है या तो हमारे rights को नुकसान पहुंच रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं? However, in case of violation, an individual or community can go the High Court or the Supreme Court for restoration of their rights. तो उनको लगता है कि उनके राइट का शोषण हो रहा है, तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाके उसके खिलाफ आवाज उठा के अपने राइट्स को बचा सकते हैं, अपने हक को पा सकते हैं. तो इसलिए इंडियन सेकुलरिज्म और वेस्टर्न सेकुलरिज्म में क्या थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आपने समझा. तो आई थिंक यू
have already, all of you understood what is the secularism in India and other countries. So students, today's our chapter is over, and in the next class we have continued with new chapters. Thank you.